Hi, good evening, friends. Welcome back to my channel AAA Easy Trading and Investing with Man Thapa. Vedanta Fashion, the market of Manyavar grew its retail store to 684 across 250 cities by June 2025. Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss. VFL dominates the India's wedding wear, but a 12.6% profit drops in Q4 financial year 2025 raise a small concern. Is it still a solid pick? Let's discuss. In next 15 minutes, I will show why this stock could be a gem, starting with its order book. Let's dive into how the Vedanta Fashion makes the money. Business module overview. Founded in 2002 in Kolkata, Vedanta Fashion is India's largest men's wedding celebration where company blending tradition with modern style. Segment retail contribute 95% of revenue, runs 684 exclusive brand outlet including shop in shop selling brand like Manyavar, Mohe and Manthan. EBO are companies or franchisee stores. SIS are a space within a large stores. Exports contribute 5% of revenues which sells to US, Canada, UK, UAE by 15 international EBOs. Offers say saris, lehengas, kurtas and accessories focusing on premium Indian wear for wedding and festivals. Now you know what they do. Let's check their business pipelines. So VFL order book is in retail expansion and franchisees agreements like a pipeline. By June 2025, VFL expanded to 1.78 million square feet across 684 EOBs, 60-70 in India, 14 abroad, in 256 cities. Added 8 stores in Q1 financial year 2026 with a new franchisees agreement in Tier 2 cities like Jodhpur and Bhopal. Why it matters? This expansion drives revenue, but slower stores additions could limit also the growth. Why VFL thriving? Let's look at the industry as well. India's apparel market is booming and VFL leading the wedding wear segment. And it is also a play for a premiumization. India's $557 billion apparel market grew 10% annually, driven by wedding and festivals. Wedding wear alone is a $5 billion segment, with VFL Manyavar as the top brand. Their 1.78 million square feet retail footprint and premium brand portfolio give them a dominant position in a traditional unorganized market. What's the VFL growth plan? Let's look into that. Q1 financial year 2026 revenue up by 17.2% to 281.19 crores, PAT up 12.4% to 70.26 crores with retail sales up by 23.2%. Expanded to 684 EBOs by June 2025, plans to add a 20 to 25 store annually targeting Tier 2 and 3 cities as well. Merge a subsidiary Manyavar Creation Private Limited in April 2024 to streamline the operation as well. Proposed rupees 8 rupees per share final dividends for financial year 2025 yielding 1.08%. In financial year 2025, revenue is 1,428 crores, profit 396 crores. Q4 financial year 2025 revenue flats at a 1.2%, PAT down 12.6% to 101 crores. Growth looks little solid, but what's the risk here? Let's discuss on that part also. Q4 financial year 2025 EBITDA falls to 5.3%, margin contrasted due to high inventory cost, stock down 34.8% in past 1 year, trading at 752. Higher debt days, which is 163, and a working capital days is 313 days, signaling a cash flow strain. Competition from our Raymond Lifestyle and Aditya Birla Fashion in the organization retail is a new challenge. Now let's look at the number. So Vedanta Fashion Limited has a market capitalization of 18,000 crores and their enterprise value is again 18,503 crores. Their debt is very negligible, which is 0.27, and a free cash flow they are having of 388 crores. From all time high they are almost 50% down. द रीजन बिहाइंड इट इज कि इसका जो सेल्स जो है वो थोड़ा सा अगर आप 3-4 साल का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई है. दिस इज द रीजन कि इसमें जो है आपको 50% जो है डिस्काउंट में ये सेल देखने को मिल रहा है. वहीं पर ही जो है स्टॉक का अगर मैं आरओसी और आरओई की बात करूँ तो वो काफ़ी फैंटास्टिक है, विच इज़ 26.7 एंड 23%, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा. अगर पी देखा जाए तो 45.5 है, इंडस्ट्री पी 47 है, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम है. बुक वैल्यू जो है 73 रुपीज़ है, जबकि करंट वैल्यू जो है चल रही है 742. ये इंटेंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर के वैल्यू में ट्रेड कर रहा है. इसने जो हाई बनाया था वो 1512 का बनाया था, लो 706 का बनाया था, वहां से जो है कुछ रिकवर भी कर चुका है. डिविडेंड यील्ड 1% का है, फेस वैल्यू 1 का है, नंबर ऑफ शेयर्स 23.3 करोड़ हैं.
पीई डिफरेंस बाय इंडस्ट्री 3% का है। पेग रेशियो जो है वो 5 है, मींस पेग रेशियो अगर हम इसका ग्रोथ देखेंगे ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए जो है हमें ये 50% जो है डिस्काउंट में भी देखने को मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में क्योंकि एक प्रीमियराइजेशन जो है थीम काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, वेडिंग में लोग आजकल जो है काफ़ी जो है एक्सपेंस करते हैं, तो आने वाले टाइम में जो है ये डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मर बन सकता है। CFO बाय पैट अगर देखा जाए तो 117% का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 10 का है, जबकि इंडस्ट्री का जो है 5.44 है, तो इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ये हमें ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। अब इसका जो है प्राइस अगर मैं देखूं तो इसका जो है 5 साल की जर्नी देख लेते हैं। 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 18 फरवरी 2022 से जो है ये हमें जो है कभी जो है ऊपर कभी नीचे जो है मूवमेंट कर रहा है। जिस डेट में इसकी लिस्टिंग हुई थी 18 फरवरी 2022, वहां से भी जो है अभी उसके उससे भी कम वैल्यू में जो है ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जो है हम एक बार पी ईयर जो है लास्ट 3 साल का देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 साल का डेटा है, तो वो मीडियन से जो है हमें नीचे देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज 3 साल का अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू से भी देखूँ तो हमें जो है वो मीडियन से डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर हम जो है ईवी बाय एबिटा जो है अगर देखें तो वो भी जो है मीडियन से काफी डाउन देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप बाय सेल देखें तो वो भी हमें जो है मीडियन से डाउन देखने को मिल रहा है। तो मीडियन से डाउन देखने को मिल रहा है, इट मीन्स ये है कि जो इसकी जो एवरेज जो वैल्यूएशन रहती है उससे हमें जो है कम में ही जो है इस टाइम में ये ट्रेड कर रहा है। प्रोज इसके ये हैं कि इसका ROE और ROCE जो है काफी बेहतरीन है। 3 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो 27.2 है। कंपनीज जो है हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन कर रही है। कौन सी है कि स्टॉक जो है अभी भी जो है अगर अपने मीडियन से तो डाउन है, बट अगर देखा जाए तो अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उससे काफ़ी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। 10.1 के बुक वैल्यू में ट्रेड करना इज़ वेरी हाई। कंपनी जो है वो जो है पुअर सेल्स ग्रोथ है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा, 8.66% का लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी का जो है डेटर डेज जो है वो भी जो है वो बड़े हुए हैं, और कंपनीज की जो वर्किंग डेज कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुए हैं 168 डेज से जो है 313 डेज का। ठीक है, तो अब पीयर्स कंपैरिजन अगर हम करें तो इसमें जो है जो ब्रांड जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो ट्रेंट है, वेदांता फैशन, AB लाइफस्टाइल, आदित्य बिरला, अरविंद फैशन एंड V2 रिटेल और आदित्य विजन। ठीक है, तो ये इसके जो है कॉम्पिटिटर हैं। अगर यहाँ पे जो है हम देखें तो वेदांता फैशन जो है 0.25 जो है इसका प्रीमियम, इसका जो है चेन्नई लोगों ने जो है इसमें इंप्रूवमेंट करी है, मतलब अपनी वैल्यू को बढ़ाया हुआ है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी 10 के आसपास में है। वहीं पर जो इसके जो कॉम्पिटिटर जो है जो बिगेस्ट है वो ट्रेंट का है 33% का, और उसके बाद में जो है V2 रिटेल का जो है 17 का है। तो ये जो है तीसरे हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें जितना कम हो वैल्यू उतना बेहतरीन होता है। तो ये जो है काफ़ी हाई वैल्यूएशन में जो है वो ट्रेड कर रहा है। सेल्स अगर हम देखें तो ये जो है 11% से लास्ट 3 ईयर्स में ग्रो करा है, जबकि लाइक वाइज अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर देखूं तो वो काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो हुए हैं। जैसे ट्रेंड जो है वो 56% ग्रो हुआ है, उसके बाद में जो है V2 रिटेल जो है 44% का ग्रोथ करा है, आदित्य विजन ने 35% का ग्रोथ करा है। तो इसका ग्रोथ भी जो है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम अगर जो है इसका ROCE अगर हम देखें तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, 32% का ये ROCE बनाते हैं। ROE जो है वो हाई इन द इंडस्ट्री है, 27.24 का बना रहे हैं। तो ROCE और ROE काफ़ी बेहतरीन है, और जितना भी ये पैसा प्रॉफिट जो ये दिखाते हैं या जो इनको प्रॉफिट होता है उतना ही जो है वो कैश में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। ऑल टाइम हाई से जो है वो ऑलरेडी 50.90 है, इट मीन्स कि ये जो है हमें काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जो उसकी हाई वैल्यूएशन गई थी वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है ये अभी हमें देखने को मिल रहा है। अब जो है यहाँ पे इसके क्वार्टरली अगर मैं सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जून 2024 में जो है इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ था, माइनस में 22 गया था। सितंबर में 22% से ग्रो करा, दिसंबर 2024 में 7% से, मार्च में 1% से ग्रो करा है, और जून 2025 में जो है 17% से जो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं पर ही जो है इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 50%, 60%, 48%। तो अभी रिसेंटली जो है अगर लास्ट में 3-4 क्वार्टर में बोलूँ तो 46, 47, 48, 45 एंड 43% जो है ये ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जो है इसी के आसपास में मिल रहता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अदर इनकम्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस जो है वो कंटिन्यूसली ऑन राइजिंग ट्रेंड है, कुछ कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। वहीं पर जो है इंटरेस्ट जो है वो 14 करोड़ का जो है इन्होंने पे करा हुआ है, डेप्रिसिएशन 40 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लास्ट क्वार्टर में जो है वो 93 करोड़ का है, 24% का जो है इन्होंने टैक्स देके जो है नेट प्रॉफिट जो है 70 के आसपास का जनरेट करा हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर से जो है डेफिनेटली यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको ईयरली देखूँ और लास्ट 4 साल का अगर मैं डेटा जो है वो देखूँ तो 2022 में जो है 1009 करोड़, मार्च 2023 में 1300 करोड़, मार्च 2024 में 1365 करोड़, मार्च 2025 में 1386 करोड़, और अभी तक जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में 1428 करोड़ का है। तो हाईएस्ट एवर जो है सेल्स में ये खड़े हैं। रेवेन्यू जो है मीन्स जो है बॉटम लाइन जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 396 करोड़ का जो है अभी देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर मार्च 2025 तक जो है ये 388 करोड़ का था, वहां से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मार्च 2024 में जो है ये 415 करोड़ का होता था, और वहीं पर ही जो है सेल जो है वो 1365 करोड़ होने के बाद में भी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 548 करोड़ का जो था वो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ से जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये था कि उस
टाइम में जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 48% के मार्जिन में काम कर रहे थे, बट 46% मार्जिन भी जो है काफ़ी अच्छा है। अगर जब इन्होंने शुरू जर्नी करी थी 2016-17 में, तो ये 30-29% के आसपास का जो है मार्जिन में ये काम करते थे। 2021-22 में ये बढ़ के जो है 43-48% हुआ। 2023 में 50% का भी जो है ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने लेके दिखाया। अभी जो है 46% का ऑपरेटिंग मार्जिन में कर रहे हैं। तो फेयरली जो है अच्छे प्राइस में जो है ये काम करते हैं, इसलिए जो है इनका आरओसी आरओई भी जो है काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर अगर कंपनी की ग्रोथ देखा जाए तो लास्ट 5 साल में जो 9% से ग्रो करा हुआ है। लास्ट 3 साल में जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो 11% से बढ़ा है, लेकिन जो प्राइस जो है वो -16% से टूटा है। 12 ट्रेलिंग मंथ में 10% से जो है सेल्स ग्रोथ हुआ है, वहीं पर प्राइस जो है वो 35% से ऑलरेडी टूट चुका है, ओवरऑल 50% से टूटा हुआ है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा वैल्यू बाइंग लेवल जो है हमें लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर में देखें तो 25%, 27% और जो है 23% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये मेंटेन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। बैलेंस शीट अगर देखें तो इक्विटी कैपिटल जो है वो 24 करोड़ के आसपास का है। रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ के जो है अभी ऑल टाइम हाई रिजर्व 1762 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। बोरोइंग जो है वो लास्ट ईयर में 444 का था, अभी जो है 483 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है इनकी। कुछ अदर लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं। फिक्स एसेट्स जो है इनके 663 करोड़ से जो है 688 करोड़ के आसपास में जो हुए हैं। टोटल एसेट्स जो है अभी 2747 करोड़ का है। कैश फ्लो जो है ये बिल्कुल काफ़ी बेहतरीन जो है कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। जितना पैसा जो इनके पास में प्रॉफिट आ रहा है उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें नो डाउट कोई भी जो है सेकंड थॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। डेटर डेज जो है वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव में गया हुआ है, 151 से 163 डेज में गया हुआ है। इन्वेंट्री डेज जो ये रखते थे 139 डेज का, वो भी जो है अभी बढ़ के 200 डेज का, ये भी नेगेटिव में गया हुआ है। डेज पेबल जो इनको 88 रुपीज़ में जो होते थे वो जो है अभी जो है 101 दिन में हो रहा है, ये भी जो है यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल क्योंकि ऊपर की सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव में है, तो जो 202 दिन का जो देखने को मिल रहा था वो अभी जो है 261 डेज का देखने को मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 105 से 313 दिन का जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरओसी जो है वो अगेन बेहतरीन है, 27% का जो है इस ईयर है। लास्ट ईयर इससे काफ़ी अच्छा था, 31% का 2023 में जो है 39% का था, 2022 में जो है 33% का था, 2021 में जो है वो 15% के आसपास में था। तो अभी जो है वो फेयरली बिल्कुल अपने मीडियम लेवल में जो है ये आरओसी भी जो है उसी लेवल के आसपास में ये जनरेट कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम 2022 से अगर हम पैटर्न देखें तो जो 84.9% की जो होल्डिंग प्रमोटर की रहती थी वो जो घट के जो है अभी 74.95 की होल्डिंग हो गई है। ऑलमोस्ट 10% की होल्डिंग जो है अपने प्रमोटर ने जो है यहाँ पे डिक्रीज करी हुई है, डिल्यूट करी हुई है। वही जो 10% का जो है ये कहाँ पे स्प्लिट हुआ है। एफआईआई की जो होल्डिंग 2022 में 3.35 की थी वो बढ़ के जो है अभी 9.88 हो चुकी है। डीआईआई की होल्डिंग 9.74 से जो है वो बढ़ के जो है 11.10 के आसपास में हो गई है। वहीं पर पब्लिक की जो होल्डिंग थी जो 2% की रहती थी वो बढ़ के जो है वो 4.07 की हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो मार्च 2025 में जो है 4.3 की थी, वहां से जो है ये रिड्यूस हुआ है 0.07 के आसपास में, ये भी जो है एक पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर मैं मार्च 2025 और जून 2025 में जो ट्रांजिशन जो हुआ है वहां पे अगर मैं देखूं तो जो है प्रमोटर की कांस्टेंट रही है। एफआईआई ने थोड़ी सी सेलिंग करी हुई है, कितनी सेलिंग करी हुई है 0.3 के आसपास की सेलिंग करी हुई है। वहीं पर डीआईआई ने जो है 10.5 से 0.6 के आसपास में जो है डीआईआई ने बाय करा हुआ है, और पब्लिक ने भी जो है यहाँ पे जो है 0.3 के आसपास की जो है वो सेलिंग करी हुई है। तो ये भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो है आपको एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल डेफिनेटली जो है वो गो थ्रू करना है, ताकि जो है आप अपने कन्विक्शन को जो है और अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है आप इसको बिल्डअप कर सकें। अब जो है हम मूव करेंगे इसके टेक्निकल की तरफ। तो ये जो है इसका टेक्निकल चार्ट मैंने खोल रखा है 1 वीक का। इसकी जो जर्नी जो शुरू हुई थी दोस्तों, ये जर्नी शुरू हुई थी फरवरी 2022 में। आज जो है हम 2025 के अगस्त में खड़े हैं, तो 22, 23, 24, 25 मीन्स 3 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो जहाँ से इसने जर्नी शुरू करी थी उस जर्नी से भी जो है ये नीचे के पैटर्न में जो है हमें यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 50% ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी गिरा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक एरिया हो सकता है जहाँ से हम इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें। अभी जो है इसने जो है अगर मैं इसकी थोड़ा सा वैसे मैं आपको बताऊं 2022 में जो है ये कितने करोड़ का अगर बिजनेस ये कर रहे थे, तो 2022 में जो है ये करीबन जो है 1000 करोड़ का कर रहे थे, अभी 1400 करोड़ के आसपास में पहुंचे हैं बिजनेस में। वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट जो 300 करोड़ का जो कर रहे थे अभी 396 करोड़ के आसपास में पहुंचे, तो ये वहीं पर ही है लगभग। लेकिन अगर मैं इनकी 10 साल की जर्नी देखूं तो काफ़ी बेहतरीन है। 500 करोड़ से जो है 1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचा है। 90 करोड़ से जो है वो बढ़ के जो है 396 करोड़ के आसपास में इनका जो है नेट प्रॉफिट का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न जो है दोस्तों, वो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आप देखो कि यहाँ से जो है ये जो स्टॉक की जो है ये डीप मूवमेंट हुई है डाउन की तरफ। इसके बाद में जो है यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे जो है एक बेस बनाया है, फिर ये बेस बनाने के बाद में जो है ये ऊपर गया है, और यहाँ पे बेस बनाने के बाद में जो है फिर से यहाँ पे एक सेकंड ये बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो है एक डब्लू पैटर्न का जो है ये शेप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है ये डब्लू पैटर्न लग रहा है कि यहाँ से जो है इसने मूवमेंट जो है ये चालू करी है, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से जो है फिर ये ऊपर गया है, फिर ये अभी जो है इसी पैटर्न में जो है यहाँ से जो है ये फिर यहाँ से ये डाउन आया, अब जो है यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है
दोस्तों ये किसी भी तरीके से जो है ये मूव कर सकता है, ये हो सकता है कि इसको जो है ये ब्रेक भी कर ले, बट फंडामेंटली जो है ये काफ़ी साउंड लग रहा है, फंडामेंटली जो है ये ठीक लग रहा है, अपने जो है अच्छे जगह में है। यहाँ से जो है एक अच्छी मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली आने के जो है पूरे पूरे चांसेस रखता है। और कंपनी जो है वो अदरवाइज कंपनी जो है अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की जो थीम जो है जिसमें ये ट्रेड कर रही है, एक वेडिंग थीम जो है वो एक अच्छी थीम हमें लग रही है, और वेडिंग थीम जो है वो आने वाले टाइम में भी जो है डेफिनेटली चलेगी। तो वेडिंग थीम में जो है फोकस थीम है, लोगों के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इसका प्रीमियराइजेशन का भी जो है इसमें जो है डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से जो है हमने इस वीडियो को, इस कंपनी को कवर करा है, नेक्स्ट वीक अगेन नेक्स्ट स्टॉक के साथ में जो मैं आपके साथ में मुलाकात करूंगा। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो आई एम साइनिंग ऑफ दिस सेगमेंट थापा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।